Hello, Capricorn, Capis. Welcome to my reading. This is love reading, certainly, but no contact love reading with current feelings. Okay, no contact love reading. Those who are in no contact state completely or having very less communication, उनका current feelings उनके partner के प्रति क्या है, या फिर उनके partner का feelings उनके प्रति क्या है, कैपिस के प्रति क्या है. This reading is all about that. Okay, no contact, current feelings, love reading. Mind it. Okay, Capricorn, you can watch it as a sun sign, moon sign, rising or ascendant sign, and Venus sign. Now, this is a general reading for all the Capricorns, so certain things might resonate, certain things might not resonate. Please keep that in mind. Sabka love story ek jaisa nahi hoga. That is what is natural and obvious, right? So please take it as it resonates with your own love story. अच्छा, role reversal भी हो सकता है. That is also a very important factor. Those who watch tarot reading, they know, they are aware of it. Role reversal हो सकता है, energies flip हो सकता है, you know, आपके तरफ से भी हो सकता है. हालांकि मैं दोनों का feelings अलग अलग से check करूँगी, तो आप प्लीज देख ले जो आपके साथ मैच करे, उस हिसाब से आप इस रीडिंग को ले. क्रॉस वॉचर्स, दिस मैसेज इज फॉर यू ऑल्सो इफ यू आर कनेक्टेड टू कैप्रिकॉर्न. ओके ओके, लेट्स सी द म्यूचुअल एनर्जीज फर्स्ट और द ओवरऑल एनर्जीज ऑफ द रीडिंग. आप दोनों के तरफ से क्या एनर्जीज है देखते हैं पहले. Capis, it seems you have planted a seed and you're waiting for the seedling, you're waiting for the sprout. So waiting and watching का energy है. You've invested and you're waiting and watching for the result. Mutual energy है, mind it. This is a mutual energy from both of you, or the overall energy of the reading. You want to be very stable in your passion, with your creative side of yours, you know. And you wish to move ahead with a lot of love. यहाँ पे भी Ace of Cups का energy आया है. Ace of Cups, Ace of Pentacles. Definitely a new beginning मैं देख पा रही हूँ. ये no contact period खत्म हो जाएगा. ये जो no contact है या less communication जो भी है कैपिस आप दोनों के बीच ही खत्म हो जाएगा. एक नए सिरे से शुरू होगा और बहुत अच्छी तरीके से शुरू होगा, क्योंकि Ace of Cups है, Ace of Pentacles है. बहुत सॉलिड वे में शुरू होगा और लॉन्ग टर्म होगा, यू नो. कम्युनिकेशन भी होगा, थॉट्स की क्लैरिटी मिलेगी धीरे धीरे. अब तक अगर पूरा नहीं मिला तो आगे मिल जाएगा, यू नो. यू विल बी क्लियर विथ योर थॉट्स, मेंटल क्लैरिटी मिलेगा आपको, बिकॉज आप बहुत दूर चल के आए हैं, बहुत दूर से आए हैं, बहुत लंबे समय से ये हो रहा है, यू नो. लेकिन फिर भी आपने अपना करेज नहीं छोड़ा. यू आर बीइंग वेरी वेरी रेजिलिएंट, कैप्रिकॉर्न. एंड यू वांट टू फाइट दिस बैटल. अब थोड़ा सा ही बचा है बैटल का हिस्सा, यू नो. Maybe that's why you're waiting and watching कि ये लास्ट फेज जो है उसे कैसे सॉल्व करे,
सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आप बहुत जोर शोर से फियरलेसली इसे सॉल्व करना चाहते हैं और एक ब्यूटीफुल सा स्टार्ट करना चाहते हैं इस बॉन्ड में अपने पार्टनर के साथ। एस ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, बहुत लॉन्ग टर्म वाला सॉलिड फाउंडेशन के साथ, विच इज वेरी गुड। So this was your mutual energy. Let's check out person A's feelings, current feelings for Capricorn no contact love reading. Current feelings for Capricorn no contact love reading universe. Please show the cards. देखते हैं एक पार्टनर क्या चाहता है, उसके बाद दूसरे पार्टनर का फीलिंग्स देखा जाएगा। डेस्टिनी बहुत जोर शोर से रोल प्ले कर रहा है शायद। माय गुडनेस, डिवाइन टाइमिंग, डेस्टिनी सब कुछ है, लेकिन एट द बॉटम ऑफ द डेक वेडिंग भी है। सी, तो ये रिश्ता आपको वेडिंग तक ले जा सकता है कैप्रिकॉर्न, टेकिंग योर रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट लेवल, वन स्टेप एट अ टाइम, एंड मे बी दैट इज व्हाट यू आर वेटिंग फॉर, मे बी बोथ ऑफ यू। डेस्टिनी, डोरवे, डिवाइन टाइमिंग, बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है डेस्टिनी आपके लिए, या फिर डिवाइन टाइमिंग आपके लिए, आपके इस बॉन्ड के लिए, रिश्ते के लिए। It's very fated, it seems. You and your partner are fated to be each other, to be with each other, to be with each other, fated bond जिसे कहते हैं। My goodness, twin flame. The reunion with your twin flame is a destined event. So he or she could be your twin flame, Capis. Doorway. An opportunity is about to present itself that leads you to a new person. Divine timing, trust in the divine timing, love arrives when it's meant to. हो सकता है ये ऑब्वियसली सब कैपीस का लव स्टोरी एक जैसा नहीं होगा, सिंस इट्स अ जनरल रीडिंग। तो कुछ कैपीस के साथ हो सकता है आप ये जो वेट एंड वॉच का, वेटिंग का अभी पीरियड चल रहा है, ये डिवाइन टाइमिंग का ही खेल है, समझ लीजिए। आपके ट्विन फ्लेम से यूनिवर्स आपको जरूर मिलवाएगा, भले ही नो कांटेक्ट कितना ही हो, भले ही नो कम्युनिकेशन या फिर लेस कम्युनिकेशन कितना हो, सेपरेशन कितना हो। और ट्विन फ्लेम के जर्नी में तो बहुत ही ज्यादा पुश एंड पुल, रनर चेजर, व्हाट एंड व्हाट नॉट, उतना डिटेल्स में मैं अभी नहीं जाऊंगी। आप लोग गूगल कर सकते हैं, देख सकते हैं, आपको पता चलेगा। इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ व्हाट ट्विन फ्लेम इज और व्हाट ट्विन सोल इज, their journey is really very difficult, very very difficult. So wait for the divine timing. एक जन वही चाहता है, एक जन वेट करना चाहता है, और एक जन के तरफ से देखते हैं क्या फीलिंग्स आते हैं करंट फीलिंग्स में। प्लीज शो द कार्ड्स यूनिवर्स। सो कैपीज, टेक इट एज इट रेजोनेट्स। जो आपको रेजोनेट करे वो आप ले, क्रॉस वॉचर्स जो आपके पार्टनर को रेजोनेट करे वो आप ले। यूनिवर्स ने जैसे दरवाजा खुला है आपके ट्विन फ्लेम से कनेक्ट करने के लिए, लेकिन उसके लिए आपको डिवाइन टाइमिंग के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। आज अभी इस वक्त नहीं हो सकता है,
एक प्रॉपर टाइमिंग आने दीजिए, डिवाइन टाइमिंग की, यूनिवर्स कंट्रोल कर रहा है इसे। द फ्लेम्स ऑफ पैशन। The eye of the truth represent clarity and insight, reminding you to trust your instincts and see things as they truly are. You possess the ability to see through illusions and uncover the truth. Believe in yourself and your inner vision. The heart of the matter represents the importance of prioritizing love and compassion in all that you do. Make love and compassion the center of your life. Your kindness will bring you fulfillment and happiness. ये जो अभी नो कॉन्टैक्ट का फेस चल रहा है, इसे प्यार में बदलिए, कंपैशन और काइंडनेस के साथ बदलिए. Fill it up with compassion. Make compassion and love the center of your life. The heart of darkness represents the power of fear and the need to confront and overcome it in order to find inner peace. Confront your fears. कोई तो एक इंसान डरा हुआ है यहाँ पे इस बॉन्ड में, उतना करेजियस नहीं फील कर रहा है. इसीलिए इस करेज की जरूरत है. म्यूचुअल एनर्जीज में यही है बॉटम ऑफ द डेक. यू नीड करेज, यू नीड स्ट्रेंथ. Confront your fears and overcome them. Your bravery will lead you to inner peace and happiness. You know, डर के मारे, डर के वजह से, ओवरकम ना करने के वजह से इंसान प्यार में पीछे रह जाता है या हार जाता है. कुछ सिचुएशंस एक नहीं हो पाता है, एक ब्यूटीफुल सा बॉन्ड डेवलप नहीं हो पाता है, just because of fear and lack of strength and courage. So your bravery will lead you to inner peace and happiness. अब पता नहीं आपके लाइफ में क्या सिचुएशंस है जिसके वजह से आप डर रहे हैं. You might be knowing it better. Eye of the truth. जो सच है उसके बारे में सोचिए, फोकस सिर्फ उस पे दीजिए. यू नो, आई ऑफ द ट्रूथ. बाकी अभी छोड़ दीजिए. जो सच है उसके बारे में सोचिए, वो देखिए. हार्ट ऑफ द मैटर. मुद्दा क्या है, क्यों हो रहा है ये नो कांटेक्ट, किस वजह से हो रहा है. फोकस हार्ट ऑफ द मैटर पे डालिए. आई ऑफ द ट्रूथ. यू नो, एकदम सेंटर जो है. परेशानियां बहुत तरह की होती है या बहुत चीजों से हो सकती है. सिचुएशंस ऐसे नेगेटिव सिचुएशंस डेवलप जिसका परिणाम नो कांटेक्ट है. यू नो, नो कम्युनिकेशन है. तो एकदम सेंटर में फोकस डालिए अपना. सच क्या है, हार्ट ऑफ द मैटर क्या है. क्योंकि यहाँ पे मैं डार्कनेस भी देख रही हूँ जिसके वजह से ये फियर वाली बात आई है. कोई एक बंदा डेफिनेटली डरा हुआ है. यू नो, फियर के वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहा है. और इसीलिए म्यूचुअल एनर्जीज में स्ट्रेंथ का चैरियट का कार्ड आया है कि यूनिवर्स इज आस्किंग यू, और डीप डाउन, मे बी डीप डाउन यू वांट दैट करेज टू हेल्प यू, गाइड यू टू मूव फॉरवर्ड, यू नो, fearlessly without thinking anything else. This is what you want to do, but you're not being able to do just because you're lacking strength and courage. But deep down you want it.
You want to conquer. You want to overcome. Capricorn. Now certainly it can be your energy, your thoughts, or your partner's. So this is it, Capricorn. This is what I have for you, Capris. Hope you liked it, got some guidance, got some insights, got some helpful advice, what you should do, what you should not, where you need to focus, you know, जो एरियाज ब्लर करने वाला है उसे ब्लर कर. ऑब्वियसली ये ब्लर अलग से करना नहीं पड़ता है. जिस पे आप फोकस डालेंगे, जिस मुद्दे पे फोकस डालेंगे, वो सेंटर पोजीशन में फोकस डालेंगे, तो पेरिफेरी एरिया जो है वो ब्लड ऑटोमेटिक हो जाएगा. आपको अलग से ब्लर करने की कोशिश नहीं करना पड़ेगा. That's what science is. That's what the effect is of focus. Okay, so I hope you got my point, Capricorn. I wish you all the very best for your journey in love towards future. Okay, so see you in my next reading, Capricorn. Till then, bye-bye. Take care. See you soon.